press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello, welcome to Finish Educare. Welcome to the fourth chapter of 7th Maharashtra Board History. Name of the chapter is Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. So in this chapter, basically we will talk about the condition of Maharashtra before Chhatrapati Shivaji Maharaj. So before Chhatrapati Shivaji Maharaj, many different rulers were ruling in Maharashtra. You must have studied about history of Shivaji Maharaj in 4th standard also. So we will study little more in detail in 7th standard. So at the beginning of 17th century CE means Common Era, most of the territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar. So Nizam Shah of Ahmednagar was ruling in some parts of Maharashtra, and some parts of Maharashtra were ruled by Adil Shah of Bijapur. These were the two big kingdoms or big rulers who were ruling in Maharashtra. Also, Mughals had entered Khandesh region. So Khandesh region, I will show this in map. I will show after some time. So in Khandesh region, Mughals were ruling. Their objective was to expand their power in the south. You must have studied about Mughals in second chapter also. Mughals were very big leaders or very big rulers. Their headquarters was in Delhi. So दिल्ली उनका headquarters था. So दिल्ली से वो पूरे इंडिया में अपना रूल एक्सपांड करना चाहते थे, पूरे इंडिया पे रूल करना चाहते थे. So they were trying to expand their rule in Maharashtra also, but they were facing opposition from Adil Shah, Nizam Shah, but still they were hoping that they will defeat Adil Shah and Nizam Shah and they will expand their kingdom till south. महाराष्ट्र मिडिल में आता है इंडिया के, उसके नीचे भी वो अपना रूल एक्सपांड करना चाहते थे. पूरे नॉर्थ इंडिया में मुगल्स का रूल था. Mughals had entered the Khandesh. The objective was to expand their power in the south. There was settlements of Siddhi people who came from Africa along the coastline of Konkan. So now we will see where is Khandesh, where is Konkan. I will show you a map. In that map you can see where is Khandesh, where is Konkan. Let us see. Okay, so this is map of Maharashtra. Current Maharashtra का ये map है. So this is called as Konkan region. Konkan region is basically near the sea, Arabian Sea. This is region Konkan region. Here Siddhis were ruling. You must have visited Murud Janjira Fort. It is near Alibag. Murud Janjira Fort was the headquarters of, or was the main fort of Siddhi Janjira, Siddhi people. So here Siddhis were ruling. South of Maharashtra we are having Goa state. Here there is place called as Vasai. There Portuguese were ruling. Khandesh, this region is called as Khandesh region. Nashik or Nandurbar, this region is called Jalgaon. This region is called as Khandesh region. In this region, uh, Mughals were ruling. Some part of Maharashtra was ruled by Adil Shah. Some parts of Maharashtra was ruled by Nizam Shah. In Mumbai, Britishers were ruling. So different parts of Maharashtra was controlled by different people, and all these people used to trouble the common people of Maharashtra. They used to collect lot of money from them. So people were very angry with them. People were not having the will to fight against them because they were very mighty rulers. They were using their army and they were troubling people. So people were very angry. So let us see what was the condition of Maharashtra before Chhatrapati Shivaji Maharaj was born. Okay, so you must have understood where Siddhis were ruling, where Mughals were ruling. Mughals were ruling in Khandesh. Siddhis were ruling in Konkan region. Yeah, the competition and conflict among the Portuguese, British and French and Dutch. All these people came from Europe. ये यूरोप से आए थे. आपको पता है कि यूरोप से हमारे कंट्री के ऊपर रूल करते थे पोर्चुगीज. बहुत टाइम तक ब्रिटिशर्स ने भी हमारे कंट्री के ऊपर रूल किया. So British, French and Dutch who came from Europe were getting intense during this period. तो इनका क्या था, इनका रेस चालू था कि कौन ज़्यादा लैंड को कब्जा करेगा इंडिया में. So these people were having competition between them. Portuguese, British, French and Dutch, all these people came from Europe, was getting intense during this period. There was a stiff competition among them to capture markets for trade. Markets मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उनका एक्सपांड करने का कोशिश करते थे. The Portuguese had already established their rule in Goa and Vasai on the western coastline. I have shown you where is Goa. It is south of Maharashtra. महाराष्ट्र के साउथ में अरेबियन सी के पास गोवा आता है. देन थोड़ा नॉर्थ में अगर आप जाओगे महाराष्ट्र के, यहाँ मुंबई के थोड़ा आगे जाओगे तो वसई आता है. वहाँ पोर्चुगीज रूल करते थे. ऑलरेडी पोर्चुगीज वे रूलिंग इन दैट एरियाज. The British and the Dutch and the French found entry through medium of trading companies by setting up factories. So Britishers या French, Dutch उन लोगों ने भी कुछ कुछ एरियाज में कंट्रोल किया था. All these powers access the strength of other powers, kept themselves safe and tried to dominate as much as possible. तो ये क्या करते थे, दूसरे के पावर देखते थे कि ये कितना पावरफुल है, उसे ज़्यादा पावरफुल होने का कोशिश, उसको ज़्यादा पावरफुल होने का चांस नहीं देते थे और अपना पावर भी बढ़ाने का कोशिश करते थे. दोनों के बीच में या सभी के बीच में कंपटीशन था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा पावर एस्टैब्लिश करे, कौन ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपना एक्सपांड करे.
दिस पीपल, डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप वेर कॉल्ड एज टोपकर। टोपकर मतलब क्या, क्योंकि कैप पहनते थे, अलग टाइप का कैप पहनते थे, इसलिए उनको टोपीकर ऐसा बोलते थे। मराठी पीपल वेर कॉलिंग देम एज टोपीकर because they were wearing different types of caps. Caps are called as topi in Marathi or in Hindi on the basis of their customary headgear. Headgear means they were wearing some kind of cap in their on their head. So these people were called as topkar, or basically we can also call them as topikar. It is necessary to get acquainted with the village, Moja, Khasba, and Pargana to understand the nature of settlements in the period. So, if you want to understand how people were ruling in the period before Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj, so we must understand how villages were divided during that time. Small village was called as Moja. Mose, we called it as Mose in Marathi. So Moja, that is village. Small village was called as Moja, Kasba, and Pargana. So let us see. I have made some figures. I made some diagram. So looking at the diagram, we will try to understand what do you mean by Pargana, what do you mean by Moja, and what do you mean by Kasba. Okay, so difference between village, that is called as Moja, Kasba, and Pargana. सो हाँ, विलेज, स्मॉल विलेज, सिंपल विलेज वॉज कॉल्ड एज मौजा। ठीक है, अभी बहुत सारे विलेज जब भी एक साथ आते हैं, बहुत सारा विलेज का ग्रुप बनता है, उसे बोलते थे परगना। सो ग्रुप ऑफ विलेज वॉज कॉल्ड एज परगना, एंड इन दैट ग्रुप ऑफ विलेज वन विलेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट विलेज वॉज कॉल्ड एज कैपिटल, विलेज वॉज ट्रीटेड एज कैपिटल ऑफ दैट परगना। बेसिकली क्या होता है, छोटा सा एक विलेज है, उसे बोलेंगे हम मौजा और विलेज। और बहुत सारे विलेज जब भी एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनता है विलेजेस का, दैट ग्रुप वॉज कॉल्ड एज परगना। ओके, परगना। एंड परगना में एक मेन विलेज होगा, उसे बोलेंगे हम कस्बा। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि एक छोटा सा विलेज है, उसको बोलेंगे मौजा और विलेज। और बहुत सारे विलेज जब भी एक साथ आएंगे, उनका ग्रुप बनेगा, तो उसे बोलेंगे हम परगना। परगना का जो मेन विलेज है, जो मेन है, उसे बोलेंगे हम कस्बा। तो वहाँ उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ रहते थे, या वहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेसेस होता था, बड़े बड़े मार्केट्स होते थे, कस्बा में होते थे मार्केट। तो मेन विलेज वॉज कॉल्ड एज, रेड कलर जो दिख रहा है आपको, वो कस्बा। ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड एज परगना, और सिंपल विलेज को हम बोलेंगे मौजा और विलेज। ठीक है, अब ये विलेज के ऑफिसर्स होते थे। सो तो चीफ ऑफ द विलेज, मेन ऑफिसर ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड एज पाटिल। ही वॉज द मेन ऑफिसर ऑफ द विलेज, दैट पर्सन वॉज कॉल्ड एज पाटिल। ओके, एंड Kulkarni kept the record of land revenue. There was one more officer who was called as Kulkarni. What was the main job of Kulkarni? Main job of Kulkarni was to collect revenue. Revenue means taxes. ये सब जो villages थे, ये कोई विलेज मुगल्स के अंडर था, कोई विलेज आदिल शाह के अंडर था, कोई विलेज निज़ाम शाह के अंडर था। तो ये हर एक विलेज से, हर एक विलेजर से आदिल शाह, निज़ाम शाह ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ये डायरेक्टली टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे, दे हैड अपॉइंटेड सम पीपल। Those people were collecting taxes and they were keeping some share, and they were giving the taxes to the king. So people who were appointed by the king or appointed by Adil Shah, Nizam Shah, Mughals. So we are talking about those people. Now we are talking about a village. So main person of the village was called as Patil. Okay, and Kulkarni was the person who was below Patil, who was working under Patil, and his job was to collect revenue, land revenue। मतलब क्या, लैंड के ऊपर जो टैक्स होता है, कुछ पैसा लैंड के ऊपर का कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता था, उसे बोलते थे टैक्स। दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम दैट गवर्नमेंट और दैट किंग वॉज गेटिंग फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन दैट किंगडम। सो कुलकर्णी का काम क्या था, लैंड रिकॉर्ड रखना। लैंड रिकॉर्ड मतलब क्या, किसका किसका ज़मीन है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स वो रखेगा, और हर एक ज़मीन के ऊपर वो टैक्स कलेक्ट करेगा। ओके, दिस इज फॉर विलेज। अभी ऐसे बहुत सारे विलेजेस का एक बड़ा ग्रुप था, उसे बोलते थे हम परगना। सो परगना को रूल करने के लिए भी कुछ ऑफिसर्स थे, देशमुख एंड देशपांडे। तो दोज ऑफिसर्स वे देशमुख एंड देशपांडे। इतना याद रखो, जैसे चीफ ऑफ विलेज को बोलते हैं पाटिल, वैसे चीफ ऑफ परगना को हम बोलेंगे देशमुख। जैसे कुलकर्णी होता है, ऐसे बहुत सारे कुलकर्णी होंगे हर एक विलेज में, उन सबका जो मेन होगा कुलकर्णी का, उसे बोलेंगे हम देशपांडे। सो देशपांडे एंड देशमुख वे वतनदार ऑफिसर्स ऑफ द परगना। परगना के सबसे मेन ऑफिसर्स कौन थे, देशपांडे एंड देशमुख। सो देशमुख कौन था, चीफ ऑफ पाटिल। ऐसे एक देखो, ये विलेज है, ऐसे परगना में बहुत सारे विलेज है, यहाँ एक पाटिल होगा, यहाँ एक पाटिल होगा, यहाँ एक पाटिल होगा। हेड ऑफ ऑल द पाटिल्स was called as Deshmukh, and head of all the Kulkarnis, chief of all the Kulkarnis was called as Deshpande. So this was the administrative setup in the villages and in the Parganas during the time of before the time of Chhatrapati Shivaji Maharaj. We are talking about Maharashtra. ऐसे ऐसे काम दिया हुआ था बांट के कि ये आपका काम है, और आपको टैक्स कलेक्ट करना है, पैसा कलेक्ट करना है, और किंग को सबमिट करना है। ओके,
आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कैसे सेटअप था विलेज का. नाउ वी विल गो बैक टू द टेक्स्ट बुक. So it is necessary to get acquainted. Acquainted मतलब क्या? To understand. Now you must have understood. Acquainted with the village. Village was called as मौजा. MAUJA. मौजा. ये मौजा भी basically मौजे बोलते हैं मराठी में. मौजे means village, small village. Kasba. Kasba is head of the main village in the Pargana. Kasba and Pargana to understand the nature of settlements in that period, and also officers that perform the link between rulers and the subject. So subject मतलब कौन? वहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं जो रहते थे. और किंग कौन था? निज़ाम शाह, आदिल शाह, मुगल. जहाँ जहाँ जो विलेज में, जो विलेज आदिल शाह के अंडर आता था वहाँ टैक्स कलेक्ट करके आदिल शाह को देना पड़ता था. जो विलेज निज़ाम शाह के अंडर आएगा वहाँ टैक्स कलेक्ट करके निज़ाम शाह को देना पड़ेगा. देन परगना वॉज मेड ऑफ मेनी विलेज. तो परगना क्या था? बहुत सारे विलेज का एक ग्रुप था. उसमें हर एक विलेज में मार्केट्स होते थे, क्राफ्ट्समैन रहते थे, अलग अलग पॉटर होता था, या आपको पता है जो कॉपर की चीज़ें बनाता है, आयरन की चीज़ें बनाता है, लोहार जिसे हम मराठी में बोलते हैं. ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट थे वहाँ, अलग अलग लोग थे. जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ द परगना वॉज कॉल्ड एज कस्बा. कस्बा मेन विलेज था परगना का हेडक्वार्टर्स. अब कस्बा, ए विलेज स्मॉलर देन कस्बा वॉज कॉल्ड एज मौजा. लेट अस गेट अक्वांटेड विद द ब्रीफ विद विलेज, कस्बा एंड परगना. यह पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है. नाउ आई विल रीड. विलेज मौजा. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन द विलेजेस. अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मौजा. The chief of the village was called as Patil. So chief of the village was Patil. He used to try to bring maximum land under cultivation. Maximum land under cultivation क्यों? क्योंकि अगर लोग कल्टीवेट करेंगे, क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो उनको कुछ इनकम मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा. उस पैसे में से वो टैक्स कलेक्ट करेगा, कुलकर्णी को बोलेगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए. दैट मनी ही विल गिव टू द किंग और टू आदिल शाह और टू निजाम शाह और टू मुगल्स. He used to try to bring maximum land under cultivation. When there was any dispute in the village, कोई झगड़ा अगर विलेज में होगा तो पाटिल उसको सॉल्व करेगा. The village resolved it and made peace. The Kulkarni helped the Patil in his work. Kulkarni kept the record of revenue that was collected. कुलकर्णी का काम क्या है कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा कलेक्ट हो रहा है. लोगों को कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता था एज अ टैक्स. So that money was collected by Kulkarni. This setup was for village. We are talking about village, small village or moje. The Kulkarni kept the record of revenue that was collected. There were various artisans in the village. Artisans are basically people like copper or goldsmith, blacksmith. ये सब copper नहीं, sorry, copper नहीं, goldsmith, blacksmith, लोहार जैसे हम बोलते हैं, सोनार, पॉटर था, कुम्हार. ये अलग अलग लोग थे जो अलग अलग काम करते थे. कुछ लोग अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते थे. ये सब लोग जब भी सेल करते थे कुछ तो उनको पैसा मिलता था, और ये पैसा, कुछ पैसा उन्हें टैक्स के हिसाब से कुलकर्णी को देना पड़ता था, एंड कुलकर्णी वापस वो पैसा गवर्नमेंट को देगा. देयर वॉज वेरियस आर्टिसंस इन द विलेज. देयर वेर हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन. हेरिडिटरी मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होगा. सपोज किसी का फादर गोल्ड स्मिथ है, ओके, सोनार है, तो वो अपने बेटे को भी वो सिखाएगा कैसे सोना बनाते हैं, कैसे उसका ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. सो ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते थे पहला. देयर वॉज नो स्कोप फॉर चेंजिंग द ऑक्यूपेशन. सपोज आई एम वेरी इंटेलिजेंट, okay, but I am not interested in doing something. I want to change my occupation. That was not allowed. कॉपर का सॉरी, कॉपर में बोल रहा हूँ बार बार, गलत है. ब्लैक स्मिथ का बेटा ब्लैक स्मिथ ही बनेगा, गोल्ड स्मिथ का बेटा गोल्ड स्मिथ ही बनेगा. तो ये कास्ट के हिसाब से डिवीजन था, ठीक है. सो देर वॉज हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन. तो हेरिडिटरी मतलब क्या कि जनरेशन टू जनरेशन वो ऑक्यूपेशन आगे आगे चलता जाएगा. द पीजेंट्स गिव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस फॉर द सर्विस. अभी पहले कैसे ज़्यादा पैसे का डील नहीं होता था. सपोज कोई पॉटर है, ठीक है, और एक फार्मर है. फार्मर ने सपोज वीट ग्रो किया और पॉटर के पास पॉट है. तो अगर फार्मर को पॉट खरीदना है तो वो क्या करेगा, अपना जो उसके पास वीट है वो वीट दे देगा पॉटर को, और पॉटर उसे पॉट देगा. तो ऐसे गुड्स एक्सचेंज होता था, ठीक है. कोई गोल्ड बनाने वाला कोई आदमी है, ठीक है, तो गोल्ड, अगर फार्मर को गोल्ड खरीदना है तो वो राइस या कुछ वीट, उसके पास जो भी कल्टीवेशन किया हुआ चीज़ है वो देगा गोल्ड वाले को, और उससे गोल्ड खरीदेगा. ऐसे ही चीज़ों का एक्सचेंज होता था. सो आर्टिसंस को वैसे फूड ग्रेन्स मिलते थे. आर्टिसंस फॉर द सर्विस द रेंडर टू द विलेज कम्युनिटी. दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज बलूता. ऐसे बलूता मतलब क्या, 12 बलूतेदार थे. 12 बलूतेदार मतलब, और बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग लोग काम करते थे. कोई लोहार जिसे बोलते हैं हम, या सुतार था, कोई ऐसे अलग अलग लोग थे. कोई फार्मर था. ऐसे अलग अलग सोसाइटी डिवाइडेड था. वो अपना अपना काम करते थे और एक दूसरे के साथ अपने गुड्स भी एक्सचेंज करते थे. उनको सब चीज़ें मिलती थी. कस्बा. कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज. इट वॉज यूजुअली द हेडक्वार्टर्स ऑफ परगना.
इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, मतलब क्या, कस्बा मतलब मेन विलेज। ऐसे महाराष्ट्र में एक जगह है जिसे इंदापुर नाम का जगह है, पहले वो इंदापुर परगना था, उसका मेन विलेज का नाम था इंदापुर कस्बा। वाई कस्बा ऑफ वाई परगना, वाई इज नियर सातारा, सातारा में एक जगह है वाई, वाई परगना था, तभी बड़ा एक जगह था जिसका नाम था वाई, वाई परगना, उसमें का जो वाई विलेज है वो मेन विलेज था, सो दैट इज कॉल्ड एज वाई कस्बा। Where the headquarters of those parganas. Agriculture was the main occupation. There were skilled artists like carpenters, blacksmith, etc. in the कस्बा। तो ऐसे मेन आर्टिशंस थे, जैसे कोई कारपेंटर था या कोई ब्लैकस्मिथ था। तो अगर किसी फार्मर को कारपेंटर से कुछ काम है तो वो पैसे कम एक्सचेंज करता था, क्या करता था, उसे फूड ग्रेन्स देता था, और कारपेंटर अपनी सर्विस उसको देता था, तो उसे देता था। तो ये वो दोनों का एक्सचेंज होता था। सम पीपल वर एक्सचेंजिंग सर्विसेज, सम पीपल वर एक्सचेंजिंग गुड्स। देर वॉज यूजली अ मार्केट पेट एडजेसेंट टू कस्बा। पेट मतलब क्या होता है, मार्केट। ऐसे आपने पुणे अगर आप जाओगे तो वहाँ बहुत सारे जगहों का नाम है, शनिवार पेट, बुधवार पेट। तो पेट बेसिकली क्या होता है, मार्केट, जहाँ मार्केट होता था। देर आर मेनी प्लेसेस इन आवर स्टेट, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ वीकली मार्केट होते हैं, वीक में एक बार मार्केट होता है। तो ऐसे कुछ जगह थी जहाँ हमेशा मार्केट्स भरते थे, मार्केट्स होते थे। ऐसे बहुत सारे जगह है महाराष्ट्र में, मल्हार पेट, शनिवार पेट। ओके, सो पेट इज बेसिकली अ मार्केट। सो ये मार्केट्स कहाँ होते थे, कस्बा। कस्बा वाज द मेन विलेज, सो पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द विलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस यूज टू कम टू दैट कस्बा, दे यूज टू बाय द गुड्स एंड दे यूज टू गो टू देयर विलेज। सो कस्बा में मार्केट्स होते थे, दैट मार्केट्स आर कॉल्ड एज पेट। द शेट्टे एंड महाजन वेर द वतनदार्स ऑफ द पेट। तो पेट के जो मेन ऑफिसर्स थे वो थे शेट्टे एंड महाजन। एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरली हैव अ पेट, हर विलेज में पेट नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे विलेज है, उसमें कौन जाएगा खरीदने के लिए बार बार। लेकिन जो बड़ा विलेज था, जैसे कस्बा था, मेन विलेज था परगना का, वहाँ हमेशा मार्केट्स होते थे। तो द सेटिंग अप ऑफ द पेट वॉज द जॉब ऑफ शेट्टेज एंड महाजन। सो वॉट वॉज द मेन जॉब ऑफ शेट्टेज एंड महाजन? देयर मेन जॉब वॉज टू कंडक्ट मार्केट्स। मार्केट्स को वहाँ चालू करना, मार्केट्स कैसे रन करना, वो उनका काम था। For that they received some land from the government and some rights from the villagers. The महाजन maintained the accounts of the पेट। तो वापस महाजन का काम क्या है, पेट मतलब मार्केट में क्या कितना बिजनेस हो रहा है वो सब वो रिकॉर्ड करता था, और उनको गवर्नमेंट से कुछ पैसा भी मिलता था या कुछ उनको लैंड भी मिलता था जहाँ वो ग्रो कर सकते हैं, कुछ खेती कर सकते हैं। एज पर द ऑर्डर्स ऑफ वीर जिजाबाई, जिजामाता इज छत्रपति शिवाजी महाराज मदर। जिजामाता, अ पेट वॉज एस्टेब्लिश इन पाषाण नियर पुणे। तो जिजामाता जब भी पुणे में रहने आई, उन्होंने कुछ मार्केट्स एस्टेब्लिश किए थे, आज भी वो मार्केट्स है। देयर वॉज वन मार्केट नियर पाषाण नियर पुणे, इट वॉज कॉल्ड एज जिजापुर। जिजापुर क्यों, क्योंकि उनके नाम से नाम रखा गया है, जिजापुर, मालपुर, खेलपुर, Paraspur and Vithapur. In Aurangabad are also some pets established in the name of Maloji, Khedoji, Parsoji and Vithoji respectively. Shivapur adjacent to Khed was a पेट established in the name of छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज उनके नाम के ऊपर एक पेट, एक गांव वहाँ है, उस गांव का नाम है शिवापुर। ओके, वहाँ मार्केट्स होते थे। द वर्ड बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज टू शो दैट टू विलेजेस। आपको अगर महाराष्ट्र के आप हो तो आपके विलेजेस के कुछ नाम भी होंगे, बुद्रुक, वडगांव बुद्रुक, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं विलेजेस। ओके, द वर्ड्स बुद्रुक एंड खुर्द आर यूज टू शो दैट टू विलेजेस आर डिफरेंट। द ओरिजिनल टाउन इज कॉल्ड एज बुद्रुक। जो मेन विलेज था उसको बोलते थे बुद्रुक, जैसे वडगांव बुद्रुक। और सपोज मेन विलेज के साइड में एक नया विलेज बना तो उसे बोलते थे खुर्द एंड न्यू वन इज कॉल्ड एज खुर्द। फॉर एग्जाम्पल वडगांव बुद्रुक एंड वडगांव खुर्द। जिसको पता नहीं है, जिसे समझ में नहीं आ रहा है, जो महाराष्ट्रियन से मराठी समझते हैं, प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स, आस्क देम कि खुर्द क्या होता है, तो वो बताएंगे। आपके आसपास के गांव में ऐसे नाम होंगे खुर्द, तो आपको समझ में आएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे गांव है महाराष्ट्र में जिनका आज भी नाम वैसे ही है, वडगांव बुद्रुक या खुर्द, कुंभारखनी खुर्द, ऐसे अलग अलग नाम है गाँव के। परगना, many villages together made a pargana. I have explained this. Group of villages was called as pargana. But the number of villages was not the same in all parganas. किसी परगना में बहुत ज़्यादा villages थे, किसी परगना में कम villages थे। ऐसा फिक्स नहीं था कि 50 villages ही होना चाहिए। किसी में 100 थे, किसी में 40 थे, किसी में 35 थे, किसी में 80 थे, डिफर करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब पुणे परगना वॉज बिग परगना, इट कंसिस्टेड ऑफ 290 विलेजेस। देयर वेर 64 विलेजेस इन चाकण परगना। चाकण ऑल्सो नियर पुणे, आज भी जगह का नाम चाकर ही है, वहाँ 64 villages थे। The Shirwad Pargana was small, it had only 40 villages. The Deshmukh and the Deshpande were the Watandar officers of Pargana. I have explained this. जैसे विलेज में पाटिल और कुलकर्णी था, वैसे परगना में देशमुख और देशपांडे था। देशमुख मतलब कौन, सब पाटिल का हेड, और देशपांडे मतलब कौन, सब कुलकर्णी का हेड। देशपांडे वेर द वतनदार ऑफिसर्स ऑफ द परगना।
The Deshmukh was the chief of Patils in the Pargana. The Deshmukh did at the Pargana level. मतलब पाटिल जैसे गांव में काम करता था वैसे देशमुख परगना में काम करता था, सेम काम था दोनों का. What Patil did at the village level. So Deshmukh did at Pargana level what Patil did at village level. The Deshpande was the chief of all Kulkarnis in the Pargana. Deshpande did at the Pargana level work that Kulkarni did at the village level. मतलब विलेज लेवल पे जो कुलकर्णी काम करता था वही काम, वैसे टैक्स कलेक्ट करने का काम, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम देशपांडे पूरे परगना में करता था, पूरे ग्रुप ऑफ विलेजेस में करता था. The work that Kulkarni did at the local level. So Deshpande did at the Pargana level the work that Kulkarni did at the village level. These वतनदार ऑफिसर वेर द लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट. तो ये क्या करते थे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोग देशमुख देशपांडे उनको बताते थे, गांव के जो प्रॉब्लम्स है वो पाटिल को बताते थे, पाटिल आके देशपांडे देशमुख इनको सबको बताता था, और ये लोग जाके अपने किंग को जाके प्रॉब्लम शेयर करते थे, और जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू वो जाके कुछ पैसा अपने पास रखते थे और कुछ शेयर किंग को देते थे. अभी इसमें किंग क्या करता था, किंग का काम फिक्स था, किंग ने बोला था कि मुझे इस गांव से या इस एरिया से इस परगना से इतना इतना पैसा चाहिए. सो देशमुख और देशपांडे, कुछ देशमुख और देशपांडे करप्ट थे. व्हाट दे वर डूइंग, दे यूज टू कलेक्ट लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम द कॉमन पीपल, फ्रॉम द पुअर पीपल. वो बहुत सारा पैसा कलेक्ट करते थे और जितना किंग को पैसा देना है उतना दे देते थे, बाकी पैसा अपने पास रखते थे. सो ये चीट करते थे लोगों के साथ. ऐसे बहुत सारे देशमुख देशपांडे पाटिल ऐसे महाराष्ट्र में थे, तो इनकी वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, बहुत सारे लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. तो जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज आए उन्होंने ये पूरा सिस्टम चेंज कर दिया. अभी हम आके आगे देखेंगे उनके किंगडम में लोगों के ऊपर अत्याचार है, लोगों के ऊपर इनजस्टिस नहीं होता था. द केस ऑफ इन केस ऑफ एनिमी इन्वेजन और ड्रॉट. एनिमी इन्वेजन मतलब क्या होता है, किसी अगर दूसरे एनिमी ने अगर अटैक कर दिया तो काम देशमुख देशपांडे इनका सबका काम होगा कि वहाँ के लोगों को बचाना. इन केस ऑफ एनिमी इन्वेशन और ड्रॉट. ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा, पानी नहीं है, बारिश नहीं हुआ, तो लोगों को ड्रॉट अगर होगा, बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं करेंगे, तो लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है वो देशमुख और देशपांडे उनको जाके बताते थे. इन केस ऑफ एनिमी इन्वेशन और ड्रॉट दिस वतनदार्स आर देशमुख एंड देशपांडे रिप्रेजेंट द ग्रीवेंसेस. ग्रीवेंसेस आर बेसिकली प्रॉब्लम्स, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके जो भी डिमांड्स है वो जाके किंग को बताते थे. ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट. समटाइम्स दिस ऑफिसर्स मिसयूज देयर पावर. ये क्या करते थे, अपना पावर मिसयूज करते थे. जैसे मैंने बताया, लोगों से पैसा ज़्यादा कलेक्ट करते थे और किंग को उनका शेयर दे देते थे, बाकी पैसा अपने पास रखते थे. दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल दैट वॉज ड्यू और डिड नॉट रिमिट द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम. तो जितना पैसा कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को दे देने थे टाइम पे, गवर्नमेंट को दे दिया तो ज़्यादा पैसा अपने पास रखते थे, चीट करते थे. On such occasions, the people suffered harassment. They were harassing common people or poor people. वतन इज अ अरेबिक वर्ड इन महाराष्ट्र. इट इज़ यूज टू रिफर द हेरिडिटरी लैंड. भाई वतन क्या होता है कि सपोज मैं हूँ, मेरे पास कोई लैंड है तो वो मेरा वतन हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे बाद मेरे बेटे को लैंड दे दूंगा, तो वो हेरिडिटरी होता है. हेरिडिटरी मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को लैंड जा रहा है, उसके मालक दूसरा पीढ़ी बन रहा है. सो लैंड इज कॉल्ड एज वतन. हेरिडिटरी लैंड फॉर विच द होल्डर डज नॉट हैव टू पे एनी रेवेन्यू. कुछ रेवेन्यू देना नहीं है. कभी कभी किंग खुश होकर भी वतन देते थे, उसे वतनदार बना देते थे, ये तुझे ज़मीन मैंने दे दिया एज अ गिफ्ट, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा, और वो वतन अगर मुझे मिला, मेरे डेथ के बाद मेरे बेटे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वो, क्योंकि किंग ने दिया था मुझे. ओके, सो दिस वाज कॉल्ड एज हेरिडिटरी लैंड. द कैलामिटी ऑफ फमाइन. फमाइन मतलब क्या होता है, खाने की कमी. ड्रॉट मतलब क्या होता है, पानी की कमी. फमाइन बेसिकली इज अ कंडीशन वेयर पीपल आर नॉट हैविंग फूड. दे एग्रीकल्चर पूरा फेल हो जाता है, लोगों के पास खाना नहीं होता है. ओके, एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर. सो रेनफॉल होगा तो एग्रीकल्चर होगा. If it did not rain, crops would fail. The prices of food grains rose मतलब क्या, prices of food grains are increasing, were increasing. It became difficult for the people to get food grains and other things. There was no fodder for cattle. कि अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, चारा जो होता है, फॉडर होता है, वो ग्रो नहीं होगा, तो कैटल को भी खाना नहीं मिलेगा. जो बफेलो है या ऑक्स है या जो काव है उसको खाना नहीं मिलेगा. Water became scarce. The availability of water is very less. It became difficult for the people to live in the village. They were forced to leave the village. A famine was a great calamity for people. कि अभी तो फेमाइन होता नहीं अपने कंट्री में, ड्रॉट होता है कि सूखा पड़ जाता है, कि पानी नहीं होता है, लेकिन अपने गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारा डेवलपमेंट कर दिया है. बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स अपने कंट्री में ग्रो होते हैं अभी, कि अभी इतना फूड ग्रेन्स होता है कि सड़ रहा है अपने यहाँ फूड ग्रेन्स. तो हम अभी फेमाइन फेस नहीं करते. लेकिन जब भी ब्रिटिशर्स थे या जब भी शिवाजी महाराज के पहले जो टाइम था, उनके पहले जो टाइम था, तभी अपने कंट्री में बहुत सारे फेमाइंस होते थे, बहुत सारे लोगों के डेथ होते थे क्योंकि खाना नहीं मिलता था. लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि किंग हेल्प नहीं करता था उनको.
अगर फेमाइन हुआ तो टैक्स कम नहीं करेगा किंग, या उसे फूड ग्रेन्स देगा नहीं। शिवाजी महाराज जब भी रूल करते थे, कभी कभी फेमाइन होने के टाइम वो टैक्स लेते नहीं थे फार्मर्स से, या कभी उनको हेल्प भी करते थे, उनके पास जो फूड ग्रेन स्टोर था वो लोगों को देते थे। A great famine occurred in Maharashtra in 1630 CE. People were greatly distressed due to famine. So people were distressed due to famine. It was it described in the words. People were ready to sell themselves for piece of bhakri. So एक चपाती या एक भाकरी लेने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार थे कि मुझसे कुछ भी काम करा के ले लो और मुझे ये भाकरी दे दो खाने के लिए। इतना प्रॉब्लम था महाराष्ट्र में। Okay, but there was nobody to buy them. There was a severe scarcity of food grains. Severe scarcity मतलब क्या कि बहुत कम फूड ग्रेन्स अवेलेबल था मार्केट में, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एंटायर फैमिलीज वर डिस्ट्रॉयड, कैटल एंड फार्म एनिमल्स डाइड, क्योंकि लोगों को एनिमल्स को देने के लिए भी फॉडर नहीं है, तो लोग एनिमल्स का भी डेथ हो गया, और खाना नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों का भी डेथ हो गया। एग्रीकल्चर वॉज डिवास्टेटेड, डिस्ट्रॉय हो गया एग्रीकल्चर। द famine put an end to industries. All financial transactions came to standstill. कि जो पैसा ही नहीं है लोगों के पास, क्योंकि एग्रीकल्चर में कुछ ग्रो ही नहीं हुआ, तो बिजनेस भी नहीं होगा। स्टैंड स्टिल मतलब क्या, बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो कुछ बिजनेस नहीं हो रहा था, तो सब रुक गया था, स्टैंड स्टिल। पीपल हैड टू वॉन्डर टू फार अवे रीजन्स इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड। वॉन्डर मतलब क्या कि गांव में सपोज कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है क्योंकि पानी नहीं है, तो लोग क्या करते थे, गांव छोड़ देते थे और घूमते रहते थे, कहाँ उनको खाने के लिए मिलेगा, कहाँ काम मिलेगा। वॉन्डर मतलब क्या, दे यूज्ड टू go to far away places in search of job or in search of food, in search of livelihood। livelihood मतलब क्या कि जीने के लिए कुछ चाहिए, तो जॉब चाहिए, घर चाहिए, तो ये सब ढूंढने के लिए जाते थे। इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मलेंसी। नॉर्मलेंसी मतलब क्या होता है, बेसिकली जो नॉर्मल कंडीशंस पहले था उसे वापस लाने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर चले गए थे, फूड ग्रेन्स ही नहीं है, गवर्नमेंट भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि टैक्स पे करो, कहाँ से टैक्स पे करेंगे, बिकॉज पीपल वर नॉट हैविंग मनी। ओके, सो पीपल वर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। This devastated the life of people. So people's life were devastated. Okay, here I end the first part of the chapter. In the second part, we will talk about Warkari movement in Maharashtra. We will talk about the contribution of different saints, different Sant, like Sant Namdev, Sant Eknath, Sant Jnaneshwar. We will talk about that in detail. I hope you have understood the first part. If you have understood, you can share this video with your friends, and you can subscribe for more videos. And please share this video with your friends, because if I am getting good views, then I will upload more videos. Again, thank you very much.